Hi guys, we're meeting Surjit today from Amritsar, so let's check him out. Let me ping him on Messenger. Should be here any second now. Hi Mir, hi Rimo. Good evening Mir. We are waiting for Surjit Singh to join us from Amritsar today. I'm good Rimo, how are you? Hi Manoj. Hi Devarshi. I'm so happy for you Mir. I'm glad. Yes, hi, I'm good Devarshi. How are you doing buddy? Yes, me here. After a few days, you actually get used to it. It's not a problem. Hi, Remo. I'm so happy. Hi, Suchit. Thanks for messaging me today. Just a second. I'll find out what's happening with Surjit. Hi, Satakshi. We're waiting for Surjit to join us. I don't know what's taking him. I just spoke to him a second ago and he was about to join. I hope his connection is okay. Suchit, can you tell me if you're available now? You can join now, no problem. Hang on, I'll invite you. Uh, Suchit, okay. Suchit, can you see the invitation there? Hi, Rohit. It says waiting for Suchit to join.
Mhm. Yeah, I think Suchit has joined. Hi, Suchit. Yeah, hi. Are you able to hear me? Yes, absolutely. How are you? Yeah, I'm actually not that good, Okay, what's but happening? yeah. I joined the webinar on Dr. N.K. Sharma's webinar. You were there Hmm. as a guest. So I wanted to know more about raw food. Like, will it help me in my problem? Like I said, okay, I have chronic pancreatitis, and like I'm suffering from diabetes from last 12 to 13 years. Hmm. So that it is now resulting into complications. Naturally. So yeah, I just wanted your opinion about it. Diabetes, they call it the silent killer. Yeah, right. Yeah, because if there is any injury or anything that happens to you, then you will not be able to get an operation immediately. Yes, correct. Yeah, so diabetes is a very bad situation. First of all, I don't think that I can tell you anything new because you tell me what your doctor has told you. What has your doctor told you? Doctor hasn't told me anything new as such. It's just like that I'm on insulin, take Hmm. insulin regularly, Hmm. and like keep sugar in control. Correct. That is the only thing that can be done. But Yes. I don't understand why even after keeping the sugar level in control, I'm still encountering such problems. Maybe because sometimes the sugar might be going out of control, and over a period of time, this is Hmm. causing problem. Yes. So Did I the was doctor just tell you think, to? Huh? Sorry. I had attended Dr. Sharma's this what do you say, raw food program also, webinar also, once Hmm. during Reiki Healing Foundation's webinar. So Yes. in there, Dr. Sharma also suggested to go for more for raw food and avoid cooked food. Yes. So since even like when I attended your webinar, so I was just thinking that maybe that could make any changes. Hmm. I mean that could have some impact. Yes. Yes. So, did the doctor tell you to walk? Yeah, brisk walking and all is allowed. I mean, he did suggest that there should be some physical exercise or something Yeah, like that. not just allowed, but recommended. There is a difference. Allowed means आप करना चाहो तो कर सकते हो. Recommended means आपको करना चाहिए. No, he did not recommend as such because But you more said that he vigorous. recommended some physical activity कि कोई physical activity Yeah, करना yes, चाहिए. yes, yes, तो yes, yes. physical कोई तो activity होना में क्या है चाहिए. आपका? फिजिकल एक्टिविटी में ब्रिस्क वॉकिंग है शाम को. वॉकिंग होता है, ज्यादातर वॉकिंग ही होता है. स्पोर्ट्स अभी इतना नहीं है, कुछ भी कोई ऐसा विगरस स्पोर्ट वॉकिंग नहीं कितना है. करते हैं आप? वॉकिंग करीब करीब 1 घंटा तो होता है. 1 घंटा हो जाता है मिनिमम. हाँ हाँ, मिनिमम हो जाता है 1 घंटा. मतलब एट ए स्ट्रेच पर या पूरे उस दिन में 1 घंटा या एक साथ 1 घंटा? नहीं नहीं नहीं, एक साथ 1 घंटा होता है, पूरे हाँ स्ट्रेच में बराबर है. नहीं ओके. होता. और आपका बैठना कितना होता है? बैठना इट इज लाइक मेरा ऑनलाइन ही काम है, तो बैठना बहुत ज्यादा है मेरा. हाँ, तो आपको वो बैठना कम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका सिस्टम एक्टिव करने का वही रास्ता है क्योंकि आप जितना ज्यादा बैठेंगे उतना आपको भूख कम लगेगी और फिर भूख कम हम्म. लगेगी तो फिर वो सॉफ्ट खाना ही खाने का मन करेगा. आपका कुक खाना खाने का ही मन करेगा. आपको अपना जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वही अपना बंद करना ही पड़ेगा. आप दिन में हम्म. 3 घंटे से ज्यादा बैठना छोड़ दीजिए. Yeah, but then what do I do? I mean, the work is online, so there's no other option to sit and do it. What I can do is like morning mein I can go again for walking, then again in the evening or late evening I can go for walking. And हाँ, during the एक और daytime 1 घंटे का online, वॉक ऐड करने का ट्राई करो. 45 मिनट्स या 1 आवर का एक और वॉक सुबह को ऐड करने का ट्राई करो आप.
हाँ एंड हाँ हाँ सेकंड आप अपना हाई फाइबर डाइट कर दो। हाई फाइबर डाइट मतलब जो मैं बताता हूँ, जो आप मेरे इस वीक के प्रीवियस वीडियोस में सारे देखेंगे, जो पिछले 10 दिनों हाँ में हाँ के हाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हम खाते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ उसको ज्यादा लेना है। उसको आपको ज्यादा लेने में मतलब अभी आप क्या खाते हैं? आप पका हुआ खाना कितना खाते हैं? मैं एक्चुअली दिन में दो, ओनली ट्वाइस आई ईट, दैट इज इन दी आफ्टरनून समवेयर अराउंड 12:30 1 o'clock, and then 8:30 9 o'clock, and हम्म। then what I eat is large plate of salad, like raw salad जो होता है हमारा वो, हाँ and some cooked food, and then हाँ again in the evening same thing, like salad and cooked food हाँ। तो व्हाट यू कैन along डू with इज के पहले तो आप जो सैलेड खाते हो वो सैलेड मत खाओ। यू ट्राई टू ईट द होल थिंग। मतलब आप उसको जो नाइफ से कट कर रहे हो वो नाइफ से कट मत हाँ। करो। ओके या ओके सो आप जो भी खा सकते हो, आप सैलेड में जो भी खाते हो उसको भी सीधा धो के खाने का ट्राई करो। पील भी मत करो और कट भी मत करो। ओके। है ना? ये फर्स्ट थिंग आप कर सकते हो। और दूसरा आपका जो कुक्ड है वो कुक में आप रोटी हो सके तो बंद ही कर दो, चावल हो सके तो बंद कर दो। या राइट, वीट बंद हो गया है पूरा कंप्लीटली, मतलब इवन चपाती जो हमारे महाराष्ट्रियन डिश में जो चपाती हम लोग ज्यादा खाते थे, चपाती भी बंद है। राइस हाँ, है, राइस बंद नहीं है। तो राइस भी राइस आप हो मतलब सके तो एकदम जीरो के बराबर कर दो। दाल और सब्जी ज्यादा खा लो। ओके। और हाँ, तो मतलब ये जैसे मैंने सीधा तो आपको फिर बताया यू कि कैन ट्राई ट्राई एडिंग अनदर वॉकिंग वर्कआउट 45 मिनट्स या 1 आवर का मॉर्निंग में। दूसरा हो सके ओके। आप उतना बैठना कम करो। ऐसे खड़े वाले वर्क स्टेशन भी आते हैं जिसमें आप खड़े खड़े काम कर सकते हैं। और उसमें वो स्टूल आता है, मतलब वो स्टूल को भी आप अंदर ले सकते हैं, तो थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं अगर आप थक गए तो खड़े खड़े। और बाकी उसमें वो ओके मॉनिटर का जो हाइट होता है ना वो एडजस्ट होता है ऊपर नीचे। ओके 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 हाँ, ओके थोड़े ओके। महंगे आते हैं लेकिन वो मेटल का पूरा फ्रेम आता है और उसमें आप मॉनिटर ऊपर नीचे कर सकते हो, तो आप बैठ सकते हो, खड़े खड़े भी काम कर सकते हो। सो एक ही आप बैठना हम्म। कम करो, चलना एक और सेशन ऐड करो। दूसरा है कि आप जो सैलेड खा रहे हो उसको बिना कट या बिना पील किए खाओ। एंड थर्ड थिंग है कि हाँ, आप जो कुक खाना खा रहे हो वो जब तक कम हो रहा है तब तक आप रोटी और चावल हो सके उतना अवॉइड करो और सब्जी और दाल ज्यादा खाओ। लेकिन मैं आपको ये एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि जैसे कैन वी ओनली सरवाइव ईटिंग ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब यही खाकर यस यस एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? बिकॉज आप सोचो ना, आपको चाहिए क्या? एक तो आपको प्रोटीन चाहिए, बराबर है। राइट? तो प्रोटीन आपको बादाम में से, काफी सारे भी दूसरे ड्राई फ्रूट में से मिलेगा राइट आपको। फ्रूट में राइट। वो गुआवा होता है, एवोकाडो होता है, ये सब चीजों में से आपको प्रोटीन प्रोटीन मिलेगा। होता फिर है। लीव्स में आपको स्पिनच वगैरह में से आपको प्रोटीन मिलेगा। सो प्रोटीन हो गया। प्रोटीन मिला। फैट चाहिए बराबर आपको, है। तो फैट आपको मूंगफली में से मिलेगा, बादाम में से, काजू में से, राइट। अखरोट, एप्रिकॉट, इन सब में से आपको ड्राई फ्रूट में से फैट मिल जाएगा। फिर आपको जो बराबर है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे विटामिन एंड मिनरल्स है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो सारे ही आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट में से मिलने ही वाले हैं। ओके ओके ओके। कैल्शियम वगैरह चाहिए तो वो बादाम में होता है। सो मतलब आपके बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो तो सब आपको उसमें मिल ही जाएगा। प्लस आपको शक्कर, नमक और तेल से छुटकारा मिल जाएगा। राइट, तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं कुक फूड पूरी तरह छोड़ दूं और सिर्फ यही खाऊं, मतलब ड्राई हाँ, मैं तो फ्रूट्स, ऐसे ही फ्रेश करता हूँ। मेरे फ्रूट्स को और तो मन करता वेजिटेबल। है तो वीक में एक आध दो बार खा लेता हूँ, वेनसडे को या संडे को या ऐसा करके। पर बाकी तो एवरीडे ये रॉ पे ही चलता है खाना। ओके। जैसे सर आपके लास्ट वेबिनार में मैंने सुना था कि आप काफी टाइम से रॉ फूड पे थे, और हम्म। जब से ये आपका वॉकिंग का मतलब जो शुरू हुआ है 40,000 किलोमीटर का, तभी हम्म। से आपने फिर कुक फूड में थोड़ा सा शिफ्ट किया हुआ है। वो तो तो मैं फिर जानना तभी चाहता था। जब मैं वो एक मैं 1500 किलोमीटर का जो मैंने टूर किया, जिसमें मैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब हाँ स्टेट्स हाँ चल के मैंने क्रॉस किया। तब रास्ते में हाँ मुझे हाँ। फ्रूट या ड्राई फ्रूट मिलना मुश्किल था, इसलिए मैं वो राजस्थान में था तो दाल बाटी खाता अच्छा, था, तो वो हरियाणा रीजन पंजाब था। में था ओके तो आलू ओके। पराठा खाता था। अब मैं बड़ौदा वापस आ गया हूँ, अपने घर वापस आ गया हूँ, तो मेरा डाइट वहीं वापस रॉ पे ही आ गया है। अच्छा, तो आपको अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, इसके लिए मुझे लगा कि आपका एनर्जी लेवल ज्यादा चाहिए था, इसके लिए आप कुक फूड आपने शुरू किया। आई थॉट नहीं 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 इट नहीं, वाज लाइक उसमें दैट। तो एनर्जी ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा खा सकते हो ना। अभी भी मैं रोज का चलता तो मोरलेस उतना ही हूँ, अभी भी मैं रोज का 20-30 किलोमीटर चलता ही हूँ। लेकिन फर्क क्या हाँ पड़ता हाँ। था, जैसे उधर फॉर एग्जाम्पल मैंने सुबह 5 बजे चलना शुरू किया, तो 5 बजे तो सब हम्म। कुछ बंद होता है।
ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, कोई चाय की लारी मिलेगी। सो चाय की लारी पे मैंने चाय पी ली और 2 पैकेट बिस्कुट खा लिया, जो एकदम गलत है, क्योंकि बिस्किट के अंदर सारे प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, प्लास्टिक का पैकेजिंग आता है, मतलब वो बिल्कुल गलत है। बरोबर लेकिन आपको और कुछ मिलेगा ही नहीं ना, सुबह हाईवे पे आपको क्या मिलेगा। बरोबर है, बरोबर है। हाँ। फिर 9 1 बजे 10 बजे वो जो ढाबे वाबे खुलते हैं, तो ढाबों पे कुछ आलू पराठा या दही या ऐसा कुछ खा लिया, क्योंकि ढाबे पे भी आपको अनकुक्ड क्या मिलेगा ढाबे पे। राइट। वैसा था। सो मतलब जहाँ पे जो मिल गया वहां पे मैंने खा लिया। यहाँ पे क्या होता है कि मैं मतलब अगर सुबह समझो 4 बजे 5 बजे अगर मैं निकल रहा हूँ, तो मैं उसके पहले ही उठ के हम्म। थोड़ा खा सकता हूँ, अगर मुझे मन किया तो मैं कुछ फ्रूट वूट खा सकता हूँ घर से निकलने के पहले। दूसरा, मैं वहां पे जब चल रहा था तब मेरे पास सामान था, ऑलमोस्ट 4 5 किलो का सामान था। यहाँ ओके। पे जब मैं चलता हूँ तो मेरे पास सामान भी नहीं होता है, तो मुझे वो उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा, वहां पे मैं यूजुअली धूप में चलता था, दिन भर चलता था और रात को सोता था। पर यहाँ पे हम्म। मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल सकता हूँ, वहां पे हाईवे होता है, तो हाईवे पे मैं सुबह 4 बजे नहीं निकल सकता, 3 बजे नहीं निकल सकता। यहाँ पे मैं सुबह 3 4 बजे भी निकल जाता हूँ। सो यहाँ पे ये डाइट चल जाता है बेसिकली। ओके ओके ओके। तो सर जैसे अभी आप रॉ फूड पे है, तो आपको उसका मतलब बेनिफिट्स क्या हुआ है, मतलब ये मुझे कोई थोड़ा लिमिट जानना ही नहीं था यार, आप कि। कैसे में मतलब आप क्या मैं बताऊं आपको कि फिजिकल फिटनेस लेवल बहुत हाई रहता है आपका, फिजिकल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, ये सब अच्छा रहता है। फिर आइडियाज अच्छे और आते हैं, सर दिमाग सबसे नेगेटिव इम्पोर्टेंट कम चीज तो। सोचता है, पॉजिटिव ज्यादा सोचता है, पेन बहुत कम रहता है, मुझे पेन नहीं के बराबर होता है, पहले मैं चल नहीं पाता था। ओके। फिर खर्चे कम होते हैं, क्योंकि आप रॉ फूड डाइट पे आ गए तो मतलब आपको दवाइयों का खर्चा नहीं, आपको कुकिंग का खर्चा नहीं, उसका टाइम नहीं, बराबर साबुन का खर्चा नहीं, क्योंकि आपको बर्तन धोने के लिए साबुन और पानी दोनों ज्यादा वेस्ट होता है, और वो सब जो है वो प्लानेट को पोल्यूट ही करता है, वो उसको ग्रे वाटर बोलते हैं, साबुन वाला पानी। है। तो एब्सोल्युटली एक अच्छा एब्सोल्युटली। फीलिंग भी आता है, पैसे भी बचते हैं, हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो आप मतलब किसी भी लेवल से आप उसको देखो, उसके मतलब फायदे गिनना ही बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स इम्पॉसिबल है। होगा, सारे ओके। फायदे और गिनना। सर आप मतलब दिन में कितनी बार मतलब आपका जो डाइट का जो प्लान है वो कैसे, मतलब दिन में आप कितनी बार खाते हो, अगर मतलब रॉ फूड जो डिपेंड आप करता है खाते यार, हो। जैसे देखो आज सुबह मैंने क्या खाया, सुबह मैंने आई थिंक ऑरेंज और वो गुआवा खाया, एक ऑरेंज और एक गुआवा खाया शायद सुबह। फिर मैंने थोड़ी देर, वो अर्ली मॉर्निंग था, 5 6 बजे के आसपास। फिर मैंने 8 9 बजे के आसपास एक बैंगन, एक करेला, हाँ ऐसा ही कुछ, 2 बैंगन, एक करेला और एक ककड़ी खाई मैंने 9 1 बजे के आसपास। फिर करेला दोपहर को मैंने मेरा जो वो और सीड बैंगन मिक्स रॉ। होता है जिसके अंदर सारे सीड्स है, ब्लैक तिल, व्हाइट तिल, मूंगफली, मेलन सीड्स, हाँ मेथी हाँ के हाँ दाने, ये वो जो सारा सीड मिक्स है, वो मैंने हाँ हाँ। खाया दोपहर को 1 2 बजे के आसपास, वो खाया। और अभी मैंने एक केला खाया अभी थोड़ी देर पहले। और मैं वापस शायद रात को सोने के पहले मन किया तो थोड़ा ड्राई फ्रूट या थोड़ा फ्रूट या एक केला या एक दो और केला और जामफल वगैरह या जो होता है वो खाऊंगा, तो हो गया काम देखा जाए तो। तो मतलब सर ऐसा आपका फिक्स नहीं है कि सुबह 8 नहीं 9 नहीं के नहीं आसपास नहीं, जैसे फिक्स एक ही चीज ब्रेकफास्ट है किया कि सुबह दोपहर। उठ के 1 लीटर पानी पीना है बस। ये एक ही ओके चीज ओके। फिक्स है कि मॉर्निंग को उठकर 1 लीटर पानी पीना है। उसके बाद जब भूख लगे, जितना भूख लगे खाओ, और सुबह को क्योंकि आप सो के उठते हैं और पानी पीने हाँ के बाद हाँ आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है, तो बहुत लाइट फील होता है, तो मतलब खाने से ज्यादा बाहर निकल कर, क्योंकि ठंड भी होती है, मतलब अच्छी सी सुबह, दोपहर से कम गर्मी होती है। तो अगर आप सुबह 3 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली पहले मन यही करता है कि मैं बाहर जाऊं। तो आपने पानी पी लिया, आपका पेट साफ हो गया, आपने एक आध केला खा लिया, एक आध ककड़ी खा ली और निकल गए। फिर आप हम्म सुबह थोड़ा बहुत वर्कआउट करके 1 2 घंटे के बाद 7 बजे तक घर पे आ जाओ, एंड देन यू स्टार्ट हम्म। ईटिंग वट एवर यू वॉन्ट टू ईट। यू स्टार्ट विद वेजिटेबल्स वगैरह, वो सब सुबह को ही, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स सुबह को खा लेने का, और शाम को फिर ये सीड्स और नट्स और ड्राई फ्रूट जो होता है वो खाने का ट्राई करने का। हम्म। सर हम्म। मैंने ये सुना है कि जो रॉ फूड वाले होते हैं, मतलब जो रॉ फूड कंज्यूम करते हैं, उनका ऐसा होता है कि पहले 3 4 6 महीने तक तो वो लोग सस्टेन कर पाते हैं, अगर बहुत उनका वेट ज्यादा है तो कैसे होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर 3 4 months और 6 months their own body is eating what do you say the fats protein वगैरह। तो एक हाँ। 3 4 5 6 महीने तक तो वो लोग सस्टेन कर पाते हैं।
और उसके बाद वो लोग और इतना वीक हो जाते हैं और इतना मतलब मसल मास जो है इतना लूज कर जाते हैं कि बाद में सस्टेन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में मुझे खास आपसे जानना था। हाँ, बहुत सही बात कही आपने कि प्रोटीन एक्चुअली थोड़ा अमाउंट में तो आपको मिनिमम प्रोटीन चाहिए ही, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन नहीं होगा ना तो आपके जो गट का लाइनिंग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लाइनिंग, हाँ हाँ। बॉडी उसी को अंदर से ही खाने लगेगा, उसके प्रोटीन को यूज करने लगेगा। और अगर आपका गट पतला हो गया तो गट में इन्फ्लेमेशन होगा, जिससे फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए जो मिनिमम प्रोटीन का अमाउंट है वो आपको लेना है। अब मिनिमम प्रोटीन का अमाउंट कितना है तो वो कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए हमें? अभी ऐसे 1 ग्राम पर केजी का ऐसा सुना हुआ है अभी। गुड, या साउंड्स गुड, या परफेक्ट, मेरे हिसाब से बराबर है कि अगर 1 ग्राम पर केजी चाहिए तो मेरा वजन फॉर एग्जांपल 75 या 80 किलोग्राम्स है, तो मुझे इस दिन का राइट 70 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। राइट राइट। हाँ, बस तो फिर आप देख लो ना कि जामफल में कितना प्रोटीन होता है, स्पिनच में कितना होता है, आवाकाडो में कितना होता है, बादाम में कितना होता है, वॉलनट में कितना होता है। वो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जितना प्रोटीन चाहिए उतना मिल रहा है तो काम खत्म हो गया ना। राइट बराबर हाँ, हाँ। वो आप चेक कर सकते हो। दैट इज जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, कि आप जस्ट ये देखो कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए और आप ये देखो कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें कितना प्रोटीन आपको मिल रहा है, हो गया काम। राइट। और सर ये डेयरी प्रोडक्ट्स और क्या बोलते हैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करते हैं ना? नहीं नहीं यार, डेयरी प्रोडक्ट तो बहुत ही गलत है। आप किसी भी पॉइंट से देखो, आप इकोनॉमी के पॉइंट से देखो, कर्मा के पॉइंट से देखो, एनवायरनमेंट, एनिमल क्रूअल्टी के पॉइंट से देखो, हेल्थ हाँ हाँ। के पॉइंट से देखो, अपने पैंक्रियास से लेकर प्रोस्टेट तक के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको डेयरी फूड्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। ओके आजकल की जो ओके ओके। फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो बहुत खराब है। पहले अलग जमाना था जिसमें जानवरों को ओपन फील्ड्स में रखते थे। अब ज्यादातर जानवर को वो उसके जो जहाँ पे उसका मशीन सेट किया होता है दूध निकालने का, वहीं पे बांध के रखते हैं पूरी जिंदगी जानवरों को। हम्म। और वैसे भी वो जो दूध वगैरह है वो बछड़े के नसीब का है, मतलब वो बछड़े का नसीब का दूध हम लेकर चोरी करके पी रहे हैं, लूट कर लिटरली। तो वो गलत ही है ना बराबर यार। और आपको भी पता है गाय प्लास्टिक खाती है, आपने भी देखा ही होगा गायों को प्लास्टिक खाते हुए। राइट 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 राइट। नहीं, दैट इज रियली हॉरिबल थिंग। मतलब कभी कभी चल जाता है, कभी कोई मिल्क शेक मन कर दिया, दोस्तों के साथ गए पी लिया, कभी खीर खा ली, ये वो सब चलता है। कभी रेयर रोस्ट ओकेजन्स पे ठीक खाना है। खाने के और थाली खाने का मन किया और छाछ पी लिया 2-3 ग्लास। मतलब कभी हाँ कभी हाँ कुछ भी चलता है लाइफ में, आपको कुछ नहीं होगा। पर जिसको बोलते हैं ना अपना जो हबिचुअल, जो अपना स्टेपल डाइट है, हाँ डे हाँ। टू डे राइट डाइट, आपका रेगुलर डाइट, दैट राइट हैज टू राइट। बी अ हाई फाइबर वैरायटी डाइट। सो वैरायटी आपको सीजनल से मिल जाएगी, जो भी आपको लोकली सीजनली अवेलेबल होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो आप सीजनल खाओगे तो वैरायटी तो आ ही जाएगी और फाइबर भी हो जाएगा। ओके ओके। वैसे ये जो वेजिटेबल्स के बारे में अभी आप बात कर रहे थे, जैसे आप करेला और बैंगन भी रॉ खाते हैं क्या? हाँ हाँ, करेला, भिंडी, बैंगन, ये सब मेरे वीडियोस है, आप देख लेना। थोड़े दिन पहले के वीडियोस जो भी आप देखोगे ना उसमें सब में है कि करेला सीधा धो के खा सकते हैं, ककड़ी है, बैंगन है, भिंडी है, लौकी है, दूधी या घिया जिसको बोलते हैं, बॉटल गॉर्ड। सो ये हाँ सब हाँ चीजें हाँ। आप सीधा धो के सीधा खा सकते हैं, काटने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। और सही अभी जैसे जो सब्जी मार्केट होता है वहां पे अगर देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम पेस्टिसाइड्स तो जाने दीजिए, वहां जहाँ पे वो रखा हुआ रहता है, जैसे अभी बारिश का सीजन है तो बहुत गंदा गंदा होता पानी है, होता है मक्खियां वक्खियां वगैरह। होती है, सब कुछ होता है, पानी हाँ उड़ता रहता है कीचड़ वाला गंदा। हाँ राइट राइट। हाँ, तो ये भी पता नहीं है कि वो लोग कहाँ धोते हैं, वीडियोस आते हैं करेक्ट, काफी गटर में ही गंदे धोते हैं, पानी मैं में, बता रहा हूँ आपको, गटर में ही गटर में धोते हैं। धोते हैं। तो हम्म फिर अगर हम लोग अनकुक्ड खा रहे हैं या फिर हम्म धो के भी खा रहे हैं तो हम्म। आपके हिसाब से ब्लांचिंग नाम का एक चीज कुछ है ऐसा कि हॉट वाटर में बस डुबो के निकाल के ये करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सब अलग सॉरी, सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। एक है सॉल्ट में, कि आप सॉल्ट वाटर से आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को साफ कर सकते हैं, या हाँ हाँ। उसमें सोक करके रख सकते हैं। दूसरा होता है वो जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आई थिंक, उसके राइट सॉल्यूशन राइट। में पानी में डाल के उसको भिगो के रखते हैं। विनेगर में कुछ लोग करते हैं, तो विनेगर से भी साफ हो जाता है, विनेगर इज एन एसिड। सो ओके ये सब ओके। रास्ते हैं। विनेगर से भी। मैंने चेक किया है कि अगर आप अच्छे से धोते हैं तो हाँ धोने हाँ से हाँ। 70 to 80% पेस्टिसाइड्स निकल जाते हैं। ओके ओके हाँ, ओके ओके ओके। एंड द 70 to 80%। रिमेनिंग 20% इज व्हाट आई कॉल एन अर्बन टैक्स, कि आप सिटी में रह रहे हो तो आपको साफ तो हवा भी नहीं मिलेगी,
आपको हाँ नॉइज हाँ, पोल्यूशन, आपको एयर पोल्यूशन, बराबर है। आपको पेस्टिसाइड आपके मुंह से, आपके कान से, आपके नाक से, आपकी आंखों से, आपको केमिकल्स और पोल्यूशन तो मिलेगा ही, या तो आप सिटी में रहना छोड़ दो। ओके ओके। हाँ, और जो बट सर कंपेयर टू आपने एक कुक फूड, उसमें नुकसान काफी कम है। अगर आप कुक फूड से कंपेयर करते हैं तो कोई हाँ हाँ, कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो 10-20% पेस्टिसाइड आपके पेट में जाना, उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि वैसे भी आप धो के पकाते हो तो आपको क्या पता कि वो जो पेस्टिसाइड है वो कुकिंग के हाँ बाद हाँ, और ज्यादा खराब नहीं हो जाता आपके बॉडी के लिए। आपको कैसे पता कि बराबर कुकिंग से पेस्टिसाइड डिस्ट्रॉय होता है? ऐसा कहाँ पे लिखा है कि है, कुकिंग से डिस्टर्ब होता पेस्टिसाइड डिस्ट्रॉय होता है? है। राइट 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 है ना? राइट राइट। पेस्टिसाइड्स तो केमिकल्स है ना, केमिकल्स तो हीट से केमिकल्स है, चेंज होंगे, केमिकल्स हीट से डिस्ट्रॉय थोड़ी और होते हैं। चेंजेस आएंगे, बराबर बराबर है हाँ, बराबर चेंज है। होता है। आप शक्कर को गर्म करोगे तो शक्कर का कैरेमल बन जाएगा, वो शक्कर डिस्ट्रॉय थोड़ी हम्म, हो जाएगा। ओके ओके ओके। ठीक है सर, काफी कुछ जानकारी दी है आपने। मैं ना, बट योर क्वेश्चंस आर दो, वेरी नाइस, आई लाइक इट। मतलब बहुत सिस्टमैटिकली, और आपने काफी ब्रॉड रेंज के टॉपिक्स कवर कर लिए, काफी सारा कवर कर लिया। आई एम वेरी ग्लैड। आपको और कुछ हाँ क्वेश्चंस है तो यू कैन मतलब, ऑलवेज कॉल और व्हाट्सएप मी। या मैं आपके साथ टच में रहूंगा, क्योंकि अभी फिर प्लीज। से दोबारा मैं कन्वर्ट होने के मतलब सोच रहा हूँ, अभी कुक फूड से रॉ फूड पे जाने की, तो शायद बहुत आपकी हेल्प फायदे है, लगेगी मतलब कि। सुचित, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत फायदे हैं। मतलब अपने बात करते रहेंगे वैसे पता चलता रहेगा, क्योंकि मतलब अपने, मैं आपको और सबको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन आई हाँ कैन हाँ नॉट बिगिन टू टेल यू यार। मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या एडवांटेजेस है। आई मीन देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आई कैन नॉट इवन पुट इन वर्ड्स, बट ऑब्वियसली मैं तो हाँ कहूंगा ही, क्योंकि मेरा आइडिया है, इसलिए मैं तो बोलूंगा ही कि बहुत बढ़िया है। लेकिन आप अपने हिसाब से थोड़ा स्टार्ट करो, आपको खुद ही बहुत लाइट फील होने लगेगा, आपको ज्यादा एक्टिव रहने का मन करेगा, आपकी एक बार स्लीप और कोशिश इंप्रूव की हो थी जाएगी, मैंने, आपका एक बार आपके कोशिश की थी डायबिटीज और सर। शुगर में फर्क पड़ेगा। आप मतलब मैं बता नहीं सकता कितने लेवल पे आपको, आपके पैसे बचेंगे, हर लेवल पे आपको फायदा होगा। मतलब इसमें एक है कि मतलब 3-4 घंटे में ना बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, ये मैंने आई नो ऑब्जर्व यार, किया हाँ था एक बार लगती है, कोशिश। पर वो आदत हो जाती है, क्योंकि क्या है कि अपने को ठूस ठूस के खाने की आदत है ना, तो वो साइकोलॉजिकली ऐसा हो गया है कि जब तक वो पेट पूरा भरता नहीं है ना, उसके अंदर मतलब ऐसा लगता है कि खाली खाली है। पर उसका एक ही हाँ रास्ता है हाँ, कि आप फिजिकली एक्टिव होने लगो। आप फिजिकली एक्टिव रहने लगोगे ना, तो आपका माइंड डाइवर्ट होने लगेगा। आप जितना ज्यादा बैठते हो, उतना खाने का विचार ज्यादा आता है एक्चुअली। ओके क्योंकि आप ओके जितना एक्टिव ओके। रहोगे उतना, पता है ना, आपके ब्रेन में वो एंडोर्फिन्स, डोपामीन, ये सब जो हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी केमिकल्स बोलते हैं, वो हम्म रिलीज होते हैं। और उनसे आपको भूख भी कम हो जाती है, और उससे आपको अच्छा भी फील होता है, प्लेजेंट फील होता है। सो हम्म। वो कम खाने का इलाज वही है कि आप थोड़ा फिजिकली ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, तो आपको एक्चुअली खाने का मन कम हो जाएगा। अच्छा, और एक सर लॉजिकल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने रॉ फूड पे काफी मतलब रिसर्च किया हुआ है, आप प्रैक्टिस भी करते हो, और डॉक्टर एन के शर्मा सर है वो भी करते हैं, तो मैं हम्म। पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे मतलब जब जैसे जैसे बोलते हैं होमोसेपियन, जब वो टाइम था, हम्म। मतलब जुरासिक पीरियड वगैरह था जब, तो उस वक्त तो इजीली इतना अवेलेबल नहीं था, फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो या कोई भी, तो तभी उस टाइम पे मतलब जो भी आदि मानव था वो हंटिंग वगैरह करके खाता था, तो उसको तो हार्डली दिन में एक बार हंट किया, खा लिया, एंड देन बाकी पूरा 24 आवर्स या 48 आवर्स जितना भी वक्त अगली बार फूड मिलेगा तब तक वो ऑलमोस्ट लाइक कीटोन्स पे उसकी बॉडी चलती थी। हाँ हाँ। तो सर उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि वहां पे कैसा था कि इट वाज मोर लाइक अ कीटो डाइट ऐसे चलता था, तो हम्म। आज अगर हम लोग अगर रॉ फूड भी खा रहे हैं, दिन में 3 बार खा रहे हैं, 4 बार खा रहे हैं, तो ये आपको मतलब कितना मतलब नेचुरल लग रहा है, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये अगर डिबेट करें कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो फार्म रेस्ड नॉनवेज जो होता है वो अगर छोड़ दे, तो पहले का जो है सिस्टम उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो आपको कितना मतलब लॉजिकल लगता है, ये चीज एक मतलब दिमाग में क्वेश्चन था। लॉजिकल आप देखा जाए तो पहले तो आप ये बताओ कि डायनासोर्स गायब हुए, उनको कितना साल हुआ अप्रोक्सीमेटली? वो तो काफी लैक्स में है, वो तो तो भी कितना काफी, अप्रोक्सीमेटली? अभी मिलियन ईयर्स में सर सुना है अभी। मेरे ख्याल से आई थिंक, मेरे ख्याल से 50 मिलियन या 500 मिलियन ईयर्स अगो, या समथिंग लाइक दैट। 50 या 500 या मिलियन ईयर्स, दो में से एक है। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ साल।
500 मिलियन मतलब 50 करोड़ साल आई थिंक। उसके पहले डायनासोर्स गायब हुए मेरे ख्याल से। सो और ह्यूमंस कब आए? ह्यूमंस का तो मुझे पता नहीं है सर, अभी हाँ तो वही 1.5 लाख साल पहले ह्यूमंस, ऐसा सुन। ऐसा कहा जाता है कि मे बी 2,50,000 years ago, 2.5 लाख साल पहले हमारा हाँ हाँ ब्रांचिंग अलग होना है। एक फीमेल थी, फीमेल, मैं भूल गया एग्जैक्टली, चिंपांजी या गोरिल्ला है जो भी है, वो फीमेल या हाँ हाँ, चिंपांजी ने जिसको जन्म दिया वो बाकी मंकीज से अलग था और वो एक नया स्पीशीज शुरू हुआ। सो पहले तो ओके। वो जो डाइट बोलते हैं पेलियो डाइट बोलते हैं, जिसको आप जो बोल रहे हो पेलियो हाँ डाइट, पहले केटोजेनिक डाइट। सो बराबर। वो डायनासोर्स के जमाने पे तो ह्यूमंस थे ही नहीं। सो आपको मतलब डायनासोर के बहुत बाद आए। आप समझ रहे हो ना, 2.5 लाख में और हाँ हाँ 50 करोड़ या हाँ 500 करोड़ में कितना फर्क है। हाँ हाँ, बराबर है सर, हाँ बराबर है। मतलब 2.5 लाख और 5 करोड़ में भी 20 गुना फर्क है, बेसिकली 20 गुना। और मैं तो सोच रहा हूँ शायद 50 करोड़ साल भी हो सकते हैं डायनासोर्स को गायब हुआ। आप देख सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, व्हेन डिड नहीं डायनासोर बिल्कुल बिकम सर, एक्सटिंक्ट। मैंने मेरे ये ख्याल बात से क्यों कही 500 मैं या आपको बता 600 देता मिलियन हूँ। ईयर्स होना चाहिए आई थिंक। सो ये मैंने इसलिए वो बात चीजों में क्यों आपके कंपैरिजन नहीं सामने है। रखी है पता है? हाँ। ये मैंने सेकंड ये थिंग, बात आपके सामने मंकीज इसके कैसे लिए रखा, खाते? सॉरी। ये बात आपके सामने इसके लिए रखी क्योंकि सर जैसे दिन में 1 मील अ डे जिसको कहते हैं, एक बार खाए और बाकी 24 आवर्स भूखे रहे, तो उसके भी बेनिफिट्स है। उन्होंने उस चीज को पहले का जो जैसे मैंने आपको बताया होमोसेपियन या उस टाइम के लोग थे, उनके साथ कंपैरिजन किया कि फिर उनका लॉन्जिविटी ज्यादा रहता था, लाइफ का वो हेल्दियर रहते थे, उनको कोई डिसीज नहीं हाँ होता नहीं, था। जो हम लोग हाँ दिन में 3-4 बार खाते हैं और जो दिन में एक बार खाना है और 24 आवर्स के लिए कीटोन्स पे बॉडी रन करना है, तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी है। तो मैं वो सुचित, लिहाज से जानना उसमें चाहता होता था। क्या है सुचित, इट रियली डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स डियर। मतलब पहले तो जो बोलते हैं ना कि ईट टू लिव, डोंट लिव टू ईट, मतलब आपका ये सब प्लानिंग होना ही नहीं चाहिए। मील, ब्रेकफास्ट, लंच, मतलब आप जब फूड प्लान करने लगते हो इतना, तो बेसिकली आप खाने के लिए जी रहे हो, आप जीने के लिए नहीं खा रहे हो। बराबर है, सिंपल फंडा बराबर। है कि आप सुबह उठकर काम पे लगो, आप सुबह गार्डनिंग करो, आप सुबह रनिंग करो, वॉकिंग करो, सुबह उठ के काम पे लगो। अगर आप होमोसेपियंस क्या उनकी बात कर रहे हैं, निएंडरथल्स क्या उनकी, तो हाँ वो लोग आपको हाँ क्या हाँ, लगता था, सुबह उठ के काम पे नहीं लगते होंगे कुछ ना कुछ? एब्सोल्युटली, वो तो जाते ही थे करेक्ट ना? हाँ, हंटिंग आप सुबह वगैरह उठ या के फिर मुंह में फूड कुछ गैदरिंग। डालना है क्योंकि पेट में भूख लगेगी आपको, सुबह जैसे ही पेट साफ बराबर होगा है, आपको आपको भूख लगेगी। एक आध केला वेला खा बराबर। लो, 2 केला खा लो और काम पे लगो। काम पे लगे आप 2-3 घंटा मिनिमम काम करो, आप मेहनत मुशक्कत वाला, फिर आपको भूख लगेगी उस हिसाब से खाओ, पेट भर गया वापस काम पे लगो। अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अपन दिन में हो सके उतना एक्टिव रहे, और फिर जब भी भूख लगती है तब खा लेने का। पेट में से आवाज आने लगेगी जोर जोर से, अगर आप सही में एक्टिव है बराबर। तो आपको जैसी भूख लगेगी पेट में से आवाज आएगी तो खा लो, बात खत्म। लगता है पेट भर गया तो रुक जाओ, इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब वो फास्टिंग और 1 डाइट 4 डाइट, हाँ हाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये सब मतलब आप बिना प्लान किए लाइफ जीने का ट्राई करो ना। देखो मतलब आपका टारगेट ये होना, जैसे मेरा टारगेट ये है कि मुझे रोज का 20-25 किलोमीटर चलना है। सो मेरा ओके। वो फिजिकल एक्टिव, ऑफ कोर्स मेरा काम है, मेरा धंधा है, मेरा नौकरी है, मेरा बिजनेस है, वो सब अलग है अपनी जगह पे। बट फिजिकल एक्टिविटी का मेरा एक टारगेट है। और मैं सब रोज उठता हूं तो मेरे दिमाग में ये होता है कि आज मैं 20-25 किलोमीटर कैसे चलूंगा, कब चलूंगा। जब मैं रात को सोता हूं तो मैं ये देखता हूं कि आज मैं 20-25 किलोमीटर चल पाया कि नहीं। तो मेरा जो उठना और सोना है वो एक फिजिकल एक्टिविटी टारगेट से कनेक्टेड है। सो आप भी अपना लाइफ किसी फिजिकल टारगेट से आप कनेक्ट करो कि मुझे रोज सुबह स्विमिंग करना है और शाम को बैडमिंटन खेलना है दोस्तों के साथ, फॉर एग्जाम्पल। तो हम्म। उसके हिसाब से जब भी आपको भूख लगे आप खाओ, जितना भूख लगे उतना खाओ, काम खत्म। ओके है ना? ओके व्हाट डू ओके। यू थिंक, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं बिल्कुल सही है, फिजिकल एक्टिविटी तो होना ही चाहिए। अगर आपका टारगेट वही होना चाहिए, बीच आपका में, टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना प्रोटीन लूंगा, इतना ब्रेकफास्ट खाऊंगा, इतना लंच खाऊंगा, इतना डिनर खाऊंगा, ये टारगेट ही नहीं होना चाहिए ना। टारगेट आपका हाँ फूड हाँ रिलेटेड होना चाहिए या काम रिलेटेड, ये बात है। हाँ, हम्म। जैसे अभी ये लॉकडाउन के वक्त मैंने वीगन वीगन कीटो डाइट ट्राई किया था। हाँ तो हाँ। उसमें ऐसा था कि मैं सिर्फ दिन में मतलब 2 बार ही खा रहा था, तो मुझे बाकी टाइम भूख ही नहीं लग रही थी। करेक्ट। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे मतलब ऐसा लगा कि चलो कीटो डाइट अगर वीगन जो है, रॉ वीगन जो है, उसके साथ कंबाइन करने की कोशिश करें। पर मैंने देखा है कि सर रॉ वीगन जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा 3-4 घंटे बाद बहुत भूख लग जाती है उसमें, और उसमें अगर ठीक है, फैट मतलब वगैरह वो का आपका इनके। अपना पॉइंट है। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल केयर नहीं करते, अगर आप समझते हैं कि मतलब हाँ जो हाँ ह्यूमंस है वो दूसरे एनिमल्स से ज्यादा
पावरफुल है और इसलिए हाँ, उनको हाँ, खा सकते हैं, क्योंकि पावरफुल होने का यही फायदा है कि आप दूसरों को मार के खा सकते हो। वो सब हाँ, फंडे भी हाँ, आते हैं, मतलब आपका स्पिरिचुअलिटी कितना है, आपका एनवायरमेंटल बरोबर है। कॉन्शियसनेस कितना है, वो सब पे मॉरल, डिपेंड करता है। जैसे बरोबर। जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, आई एम श्योर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो गए, जो लोग वो मास मॉन्स्टर्स जिनको बोलते हैं, ये खली टाइप वाले, बरोबर। वो लोग तो सुबह उठते हाँ, ही हाँ, 4 चिकन खा जाते होंगे, आई एम श्योर। पर मतलब वो बरोबर लाइफस्टाइल है। का मतलब क्या है पता नहीं, वो whatever, मतलब उनका उनका वो काम है। सो आप अपने बरोबर है, हिसाब से बरोबर। ऐसा डाइट फॉलो कर सकते हो जो आपके लिए, सोसाइटी के लिए और प्लानिट के लिए अच्छा है। बिकॉज अगर आप कर्मा में बिलीव करते हो तो फिर अगर आप हम्म। बहुत अच्छे इंसान हो, आपने किसी का गलत नहीं किया, तो आपको इतनी भारी बीमारियां क्यों हो रही है? तो हो सकता हम्म। है कि अपन जो खाना खा रहे, में भी अगर मीट खा रहे, दूध पी रहे, कोई भी गलत चीजें कर हम्म। रहे हैं, तो उससे शायद हमको नुकसान हो रहा है। ट्राई करने में क्या जाता है? राइट सर, आपके साथ ये मतलब बात करने का अगर कंक्लूजन अगर ऐसा निकलता है कि ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल जो है उस पे हम्म। अगर सस्टेन कर सकते हैं जैसा आप बता रहे हैं, हाँ। तो फिर दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी, तो हाँ, कुक फूड के एंड लिए जाने सस्टेन का मीन्स जरूरत नहीं है। फिजिकली एक्टिव लाइफ। हाँ, सस्टेन मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जिसमें फिर आप कुछ राइट। एक्टिविटी नहीं कर रहे, आपका हाँ, फिजिकल हाँ, हाँ, एक्टिविटी भी एटलीस्ट मीडियम टू हाई लेवल है, जिसको वो, अगर आप सही में जंगल में शिकार कर रहे होते तो आप रोज का कितना चलते, कितना भागते? रोज बराबर का है, 20-30 एब्सोल्युटली किलोमीटर तो आपका चलना और भागना हो ही जाता आराम से। राइट। हाँ, पर पर सर अगर नहीं होगे हाँ, उतने, वो मान एक्टिव लीजिए रहने फिजिकल उतना एक्टिविटी। एक्टिव रहने के लिए जितना खाना पड़ता है, उतना फ्रूट्स वेजिटेबल्स ड्राई फ्रूट्स खाओ, सीजनल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सीजनल होते हैं, ड्राई फ्रूट तो अराउंड द ईयर मिलते हैं ऑब्वियसली। राइट। तो सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मान लीजिए उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मान लीजिए जितना आप कर रहे हैं उतना नहीं है, एक शाम को 1 घंटा है या फिर सुबह में आधा 1 घंटा है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या इफेक्ट हो सकता है, मतलब एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, व्हाट सी, इज द मैं प्रॉब्लम? आपको बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से ना, मेरा जो फॉर्मूला है जो मुझे टेस्ट करना है, वो ये है हाँ, कि हाँ, अगर आप 3 घंटे से कम बैठते हैं, आप हाँ, हाँ, 3 घंटे जिसको बोलते हैं ना कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब पत्थर तोड़ने वाला जो काम होता है, मेहनत हाँ, मुशक्कत, मतलब हाँ, आप भारी भारी हम्म, एकदम स्ट्रेच करके फुल सूर्य नमस्कार करो, हम्म, आप जिम्नास्टिक्स करो, बराबर। लेकिन 3 घंटे जिसको कड़ी मेहनत मुशक्कत बोलते हैं, वो हाँ, अगर हाँ, आप करते हो, 3 घंटे से ज्यादा हम्म, बैठना नहीं है और 3 घंटे पत्थर तोड़ने वाला काम करना है, तो फिर आपको और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या हम्म, खाते हो, आप क्या पीते हो, उससे भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 3 घंटे वाला काम, मैंने बताया ना, हथौड़ी लेकर पत्थर तोड़ने वाला जो काम होता है, वैसा हाँ, हार्ड हाँ, वर्क होना चाहिए। अगर आप वो कर लेते ओके। हो तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस या उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इतनी ज्यादा भूख भी नहीं लगेगी, आपको ज्यादा गलत खाने का मन भी नहीं करेगा, आपका माइंड बराबर। काफी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपको एग्जैक्टली पता है कि इतनी सारी मेहनत करने के लिए भी खाना तो बेसिक ही चाहिए, तो आप बेसिक खाना शुरू बराबर। कर दोगे अपने आप। ओके, ओके, तो ओके। वो टारगेट है, ऑफ कोर्स वो मेरा लाइफ का गोल है। अब मैं कहाँ कब मैं पहुंचूंगा उस लेवल पे वो मुझे नहीं पता, बट या दैट इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। सो उतना 3 घंटा हार्ड लेबर शुड बी योर टारगेट। सो अगर आप 3 घंटा हम्म। हार्ड लेबर नहीं कर रहे हो और उसके बदले दिन में आप 2 घंटा चल रहे हो, तो अच्छा ही है, कुछ गलत तो है ही नहीं। अगर आप 1 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, लेट्स से 45 मिनट, आप 45 मिनट दिन में हम्म। सुबह में एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, 15 मिनट वॉक कर लिया और फिर 45 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज किया, जिसको हैवी एक्सरसाइज माना जाता है, तो वो किया, और शाम को 1 घंटा चल लिया, तो भी बहुत अच्छा है। इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फिर आपका 1.25 घंटे का वॉकिंग हम्म। हो गया और 45 मिनट्स का हार्ड एक्सरसाइज हो गया, तो भी अच्छा ही है। बट अल्टीमेट टारगेट शुड बी 3 आवर्स ऑफ हैवी एक्सरसाइज या 3 आवर्स ऑफ डांसिंग। ये समझ लो आपको 3 घंटे नॉन स्टॉप नाचना है, नॉन स्टॉप। अगर आप उस लेवल के ओके, फिटनेस पर आ जाते हो, तो फिर आपको कोई बीमारी, कोई डाइट, कोई कोई टेंशन ही नहीं है कुछ आपको। ओके, ओके। सो वैसे आपको उसके ये रॉ नजदीक जाते फूड। रहना है। वॉकिंग इज द मोस्ट बेसिक थिंग। 3 घंटा वॉकिंग इज द इजीएस्ट एक्सरसाइज, एंड 3 घंटा एरोबिक्स या 3 घंटा भागना फॉर एग्जाम्पल, तो वो बहुत एक्सट्रीम हो गया। तो आपको उस तरफ जाना है। आप थोड़ा थोड़ा चलने के बाद आप ऐसा कर सकते हो, आप सुबह 15 मिनट चलते हो, तो 15 मिनट चलने के बाद आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग भी डिफिकल्ट होता है, जैसे वो बैठ के ओके, या खड़े रह के अंगूठे को टच करते हैं, बैक पीछे स्ट्रेच करते हैं, सूर्य नमस्कार जो करते हैं। सो ये सब चीजें आप करो। आप थोड़ा बहुत अगर हो सके तो पुशअप पुलअप, आपका अगर आपने बताया ऑनलाइन काम है, तो आप ये देखो ना कि आप हर 1 घंटे पे खड़े होकर 5 पुशअप कर लो, हर 1 घंटे पे। तो आपके दिन के ओके। 20-25 तो पुशअप ही हो जाएंगे। बराबर है, बराबर। वैसा धीरे धीरे होगा। अगर पुशअप नहीं होता है तो प्लैंक से शुरू करो, वो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि हाउ टू राइट। लर्न टू डू पुशअप। सो उससे आपका बराबर। बेसिकली थोड़ा फोर आर्म्स, थोड़ा शोल्डर, ये सब स्ट्रेंथ बढ़ेगा।
तो वो पुशअप्स आपके हम्म। होने लगेंगे। और सर ये रॉ डाइट पे आप कब से हो, मतलब कितना टाइम हो गया आपको इसमें? अभी तो यार ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया। 1 साल होने का है। तो आपको सर आपके वेट में कुछ फर्क नजर आया है कि बहुत हाँ, वेट ड्रास्टिकली कम हुआ ड्रॉप ना, हुआ है? ऑब्वियसली वेट कम हुआ। बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा फिटनेस लेवल बढ़ गया, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। वही मैटर करता है ना, मैं जितने पुशअप पहले कर पाता उतने तो अभी भी कर पाता हूँ। तो जितना मेरा वेट कम है, मेरे 10 साल पुराने पैंट जो मैंने रख दिए थे जिसके बटन टूट जाते थे, वो पैंट मैं अब वापस पहन सकता हूँ। सो वजन कम होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरा अगर स्टेमिना में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। बराबर है। क्या फर्क पड़ता है? राइट। 1 साल से आप कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छा सस्टेन मतलब आप हाँ कर यार, पाए बहुत हैं उतना। बहुत बहुत सही चीज होती है। चलो ठीक है सर, ओके, काफी आपने जानकारी दी। इसमें सुचित, मेरे फोन में भी बैटरी भी काफी लो है। अगर कुछ और है तो हम ठीक है बाद में सर। वापस कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम डियर, है ना। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड क्वेश्चंस। या थैंक यू। चल बाय। बाय।